امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے روح رواں علی لاریجانی نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ ایران نے سرکاری سطح پر قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اعلان ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے جاری پیغام کے ذریعے کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور شہادت کا درجہ پا گیا۔ ایران کو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد سب سے بڑا دھچکا۔ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر اور مزاحمت کے روح رواں بھی شہید علی لاریجانی ایران کے سیکیورٹی چیف اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ایران نے علی لاریجانی کی شہادت کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی باپ بیٹی کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور شہادت کا درجہ پا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق علی لاریجانی ایک محفوظ مقام پر حملے میں اپنے بیٹے مرتضیٰ، نائب سیکیورٹی آفیسر علی رضا بیات اور محافظوں کے ایک گروہ کے ہمراہ شہید ہوئے۔ اس سے قبل اسرائیل نے انہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ اسرائیلی دعوے کے جواب میں علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ہاتھ سے لکھا پیغام بھی جاری کیا گیا تھا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت 19ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر شدید جوابی حملے کیے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا۔ ادھر ایران اور لبنان میں تسلسل کے ساتھ شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنگ کے 19ویں روز کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ایران کے ڈٹ جانے کا 19واں روز، کشیدگی میں تسلسل کے ساتھ اضافہ خطرناک حدود میں جا پہنچا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت نے صورتحال کو مزید ابتر کر دیا۔ فوری جوابی کارروائی میں ایران نے تل ابیب پر میزائل داغے، جہاں ایک عمارت تباہ ہوئی اور 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران نے سعودی عرب، کویت اور دیگر خلیجی ممالک پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ خلیجی ریاستوں نے انہیں ناکام بنانے کا دعویٰ کیا، مگر دھماکوں کی آوازیں گونجیں۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ادھر ایران میں 1500 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ ابنائے ہرموز میں جہاز رانی جزوی طور پر بحال ہوئی، مگر تیل کی ترسیل اب بھی شدید متاثر ہے۔ دوسری طرف لبنان میں اسرائیلی حملوں سے وادی بقا میں 4 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان میں شہداء کی تعداد میں بھی تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی لڑکی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لائبہ نے بتایا کہ گزشتہ سال جولائی میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی سے رابطہ ہوا تھا، جس نے خودکش حملہ کرنے کے لیے ذہن سازی کی تھی۔ پھر دلجان سے رابطہ ہوا، جس نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر سبیحہ سے ملوانا تھا، جہاں مجھے خودکش بمبار کے طور پر تیار کیا جانا تھا۔ زیری کے گاؤں چشمہ کی رہائشی ہوں۔ گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی ماما سے ہوا، اور بعد میں کمانڈر ابراہیم سے گاؤں اسواری میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد کمانڈر ابراہیم نے جو کہا گاؤں مشکل رہنے والی ہے، نہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھایا اور خودکش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی۔ کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ بعد میں کمانڈر ابراہیم میرا رابطہ کمانڈر دلجان سے کروایا۔ کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خودکش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر سبیحہ BYC والے سے ملوائے گا۔ انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں، جس کے بعد کمانڈر دلجان نے مجھ سے ملاقات کر کے مجھے اپنے ساتھ کیمپ لے کر جانا تھا اور خودکش مشن کے لیے ٹارگٹ کا بتانا تھا، لیکن خضدار پہنچنے پر مجھے گرفتار کر لے گیا۔ کمانڈر ابراہیم میری ذہن سازی کر کے مجھے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ آج کے بعد ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں، اور میں اپنے جیسے لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھیں۔ خواتین کا احترام بشیر زیب اور BLA نے ختم کیا ہے۔ جس گاڑی میں خواتین ہوتی تھیں احتراماً انہیں چیک نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کرنا پڑے گا، خواتین کو چیک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بہت عرصے بعد سیکیورٹی فورسز کو ہیومن انٹیلیجنس ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور کرتے تھے کہ خواتین کے بارے میں خاص طور پہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس سے معاشرے کو یہ پیغام جائے کہ جو خواتین کا احترام ہے وہ ہارم نہ ہو۔ لیکن اگر اب آپ ایسی سچویشن میں دیکھیں کہ وہ یہ احترام کس نے ختم کیا؟
बशीर ज़ेब एंड कंपनी ने ख़त्म किया। या एहतराम किसने किया? BLA ने ख़त्म किया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट कि वो उस गाड़ी को भी चेक करें कि जिस पे कोई खातून जो है वो ट्रैवल कर रही है। इससे पहले आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जिस गाड़ी में ख़वातीन होती थी, हम अक्सर पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब ख़वातीन को देखते हैं तो एहतरामन वो पुलिसमैन या FC वाले वो कहते हैं जी आप जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा। और ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये बहुत अरसे बाद, लेट मी एडमिट दिस, बहुत अरसे बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलना शुरू हो गई है। एंड दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। सेनेटर सहर कामरान कहती हैं कि CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी तारीफ के हकदार हैं। CM बलूचिस्तान ने नेशनल TV पर आकर इतनी बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। पाकिस्तान की बच्चियों को सॉफ्ट टारगेट समझकर इस्तेमाल किया जाता है। अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने पब्लिकली जो है नेशनल टेलीविजन पर आके इतना बड़ा नेक्सस और इतना बड़ा जो है साजिश को एक्सपोज किया है। और बच्ची लाइबा ने जो अपनी कहानी सुनाई है वो एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग भी है और आई ओपनर भी है। तो पाकिस्तान की बच्चियों के लिए जो कि जिनको सॉफ्ट टारगेट समझ के इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही बहन भाइयों के खिलाफ, अपने ही फैमिली के खिलाफ साजिशों में, तो मैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कि और जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इस बच्ची को गिरफ्तार किया। और जो एक बयानिया बना हुआ था मिसिंग पर्सन्स का, एक बयानिया बना हुआ था, एक साजिश थी, उसको भी एक्सपोज किया और इस बच्ची को भी मौका दिया कि अपनी गलती का एहसास। ऑपरेशन क़ज़फ़ लिल हक़ के तहत पाक फौज की अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफ़गान सरहद पर जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में शवाल से ज़रमलान तक अफ़गान तालिबान की तमाम पोस्टों को मौसर तरीके से तबाह किया। अफ़गान तालिबान पसपाई का शिकार होकर फरार होने पर मजबूर हैं, जबकि ऑपरेशन क़ज़फ़ लिल हक़ अपने अहदाफ के मुकम्मल होने तक जारी रहेगा। अहम डेवलपमेंट ये भी है कि नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जारहत के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया है। नौजवानों का कहना था कि अफगानिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा माशी और समाजी मसाइल से परेशान है, जिसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है। कराची में डाकुओं को शहरियों के हत्थे चढ़ते देखा जा सकता है। डकैतों से तंग मुश्तइल शहरियों ने मार मार कर डाकुओं का भुरकस निकाल दिया। 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस ने मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में गुलशन मेमार गबोल गोट के करीब 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक एक डाकू को शहरी की गोली लगने से दूसरा तशद्दुद से जख्मी हुआ। एक जख्मी डाकू दम तोड़ गया। डकैत लूट मार कर रहे थे कि अवाम ने पकड़ लिया। ताहम पुलिस ने पहुंचकर मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद कर लिए। दूसरी जानिब बल्दिया दाऊद गोट में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान डकैती के लिए दुकान में दाखिल हुए। दुकानदार ने मजामत करते हुए फायरिंग कर दी। डाकुओं ने भी भागते हुए फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग में एक डाकू मारा गया, 3 फरार हो गए। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। और अब तो कराची में क्रिप्टो के ट्रेडर्स भी गैर महफूज हैं। क्रिप्टो के ट्रेडर्स को लूट लिया गया। ट्रेडर ने पूरा अहवाल बता दिया है। कहा कि हाईवे पर काले शीशों वाली डबल केबिन गाड़ी में मुसल्लह अफराद ने मुझे रोक कर अगवा कर लिया। मेरे हाथ पैर बांध कर 7-8 घंटे तक मुझे यरगमाल बनाए रखा। मेरे अकाउंट से बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, मेरा मोबाइल चेक किया। मुझे कहा कि अपने दोस्तों को फ़ोन करके डॉलर्स मंगवाओ। मुझसे मेरा फ़ंड कोड तक ले लिया गया और कहा कि हमें $5 लाख दो तो छोड़ देंगे। लूटने के बाद सुराब गोड पर कचरा कुंडी में फेंक कर फरार हो गए। मुझे अगवा किया गया था और मेरे अकाउंट से कुछ बिटकॉइन जो है वो भी इन्होंने ट्रांसफ़र किए और तकरीबन 7-8 घंटे जो है इन्होंने मुझे अपने पास रखा। मुंह पे मास्क वगैरह पहनाया हुआ था। कुछ USDT मेरे पास पड़े हुए थे जिनके इन्होंने बिटकॉइन बाई किए और फिर मुझे कहते हैं कि भाई अपने लड़कों को कॉल कर, जो भी तेरे ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कॉल कर। कुछ डॉलर उससे मांगे मैंने, मुझसे मेरा फ़ंड कोड वगैरह मांगा और मैंने वो दिया। हमें $5 लाख दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। उन्होंने ATM भी यूज़ किया जिससे मेरे तकरीबन 4 लाख के करीब उन्होंने ATM से भी मेरे निकाले। फ़ोन मुझे नहीं दिया, इवन फ़ोन भी 7-8 लाख रुपए का बनता है। मेरी वॉच उन्होंने उतार ली, जो मैं आप लोगों ने गोल्डन वॉच देखी होगी अक्सर मेरे हाथ पे। अप्रॉक्सीमेटली ये सारे अगर मिलाएं तो पाकिस्तानी कोई 70 लाख रुपए के करीब बनता है जो उन्होंने मुझसे लिया। फिर इन्होंने सुबह के टाइम मुझे मोबाइल वगैरह सब कुछ मुझसे लेके मुझे 5-6 बजे के करीब सोनाब कोट पे एक जगह है कच्चा कुंडी के पास, वहाँ उन्होंने मुझे फेंका और कहते अब तो घर चले जाना।
सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अदालती कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया है। बल्दियाती काम ऐसे नहीं पाए गए जिन्होंने हंगामी गाड़ियों की रसाई को रोका हो। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अदालती कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मामलात रेगुलेटरी इदारों के दायरे इख्तियार में आते हैं। इब्तदाई तौर पर कुछ ट्रैफिक जैम की इत्तलात भी मिली थी। बल्दियाती काम ऐसे नहीं पाए गए जिन्होंने हंगामी गाड़ियों की रसाई को रोका हो। मुशाहिदा किया कि आग की शिद्दत, इमारत के अंदरूनी ढांचे और आतिशगिर मवाद के ज़ख़ीरा होने के बायस बढ़ी। ज़िला इंतज़ामिया का तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन रहा। कानूनी वरसा और मुतासरा अफराद की तस्दीक और शफाफ तरीके से मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाया गया। वेदर अपडेट शामिल करेंगे। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होना शुरू हो चुका है। शहर के मगरिबी इलाकों में बूंदा बांदी और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ इलाके बताए जा रहे हैं बल्दिया टाउन है, नॉर्दर्न बाईपास है और अतराफ के इलाके हैं जहां पर बूंदा बांदी और हल्की बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा सरजानी और अतराफ में भी हल्की बारिश रिपोर्ट हो रही है। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होना शुरू हो गया है। 2 रोज़ कबल इसके हवाले से प्रेडिक्शंस दी गई थी और ये भी बताया गया था कि कुछ इलाकों में कुछ मोतदिल और थोड़ी तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी रिपोर्ट हो सकती है। कराची के मगरिबी इलाकों में बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर यह सिलसिला शुरू हो चुका है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज हो रहा है। बल्दिया टाउन, नॉर्दर्न बाईपास और अतराफ में बूंदाबांदी हुई है। साथ ही ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि कुछ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की बढ़ती दरामदात ने एक बार फिर मईशत में दरामदी इन्हिसार को नुमाया कर दिया है। रवा माली साल के पहले 8 माह में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे कीमती ज़र मुबादला पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के दौरान पाकिस्तान ने 364 अरब 68 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन्स दरामद किए, जो गुज़िश्ता बरस इसी मुद्दत के 278 अरब 16 करोड़ रुपए के मुकाबले में 31% से ज़ायद है। फरवरी 2026 में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात 43 अरब रही, जो फरवरी 2025 के 36 अरब 83 करोड़ रुपए के मुकाबले में 18% ज़्यादा हैं। माहाना बुनियादों पर फरवरी में दरामदात में 13.35% कमी रिकॉर्ड की गई। जनवरी 2026 में यह हजम 50 अरब 27 करोड़ रुपए था। माहिरीन के मुताबिक मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी को फ़रोग़ न दिया गया तो दरामदी इन्हिसार मज़ीद बढ़ने का खदशा है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ईद की आमद के साथ ही कराची की मकामी मार्केट में सब्जियों के साथ चिकन की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त चिकन का गोश्त 650 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे कफील अहमद। आमद में 2 रोज़ हैं और अगर हम बात कर लें चिकन की कीमतें और सब्ज़ी की कीमतें जो हैं वो इस वक्त मामूल से जो हैं वो ज़ायद हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ लाइन्स एरिया से और मेरे अकब में जो चिकन की शॉप है, यहाँ जो गोश्त की कीमत है वो 630 रुपये है, जो कि अगर हम 5-6 दिन पहले की बात कर लें तो इसमें 150 रुपये का इजाफा जो है वो हुआ दुकानदार के मुताबिक, क्योंकि वो उनके हमने बात नहीं करी था। उनका कहना है कि जो प्राइस में थोड़ा सा जंप आया और ये नॉर्मली जब ईद करीब आती है, 1 रोज़ या 2 रोज़ रह जाए तो जो सब्जियों की कीमतें होती हैं या गोश्त की कीमत होती है या चिकन की कीमत होती है, उसमें जो है वह खुद इजाफा कर दिया जाता है और उससे कोई नोटिस लेने वाला नहीं होता। अगर हम बात कर लें सब्जियों की तो इसी तरह आलू और प्याज की जो कीमत है वो तो नॉर्मल सतह पर है 50 और जो है वो 60 के दरमियान। ताहम अगर हम अदरक की बात कर लें, लीमू की बात कर लें तो ये जो प्राइसेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।